آپ کو بتاتے چلیں پاکستان اور جاپان کا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں JICA پروجیکٹس پر گفتگو کی گئی اور ملاقات کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ہمارے نمائندے عزیز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عزیز، ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ جاپان کے سفیر ہیں مسٹر وائڈا مستحسرو، یہ پہنچے ہیں ایک وفد کے ہمراہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور ملاقات کی ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے۔ یہ کافی تفصیلی ملاقات تھی، اس میں JICA پروجیکٹس پہ بات ہوئی ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی صنعت کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا حوالے سے بات ہوئی ہے، سکھر میں میٹرولوجیکل ریڈار سسٹم لگانے پر بات ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی جس نے بات کی ہے کہ سندھ کی ایک جو کنڈی نسل کی بھینس ہے اس کی افزائش پہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کی پروگریس پہ کافی بات ہوئی۔ پروجیکٹ کو نام جو ہے اس کا لائیو اسٹار جینیٹک امپرومنٹ نام رکھا گیا ہے۔ یہ جو کنڈی بھینسوں کی افزائش کا مقصد یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زرعی اجناس جاپان برآمد کیے جائیں۔ آم، امرود اور دیگر پھل کی مارکیٹ جاپان میں ہے۔ پھلوں کی برآمدات کے حوالے سے سندھ حکومت اور جاپانی سفارتخانے کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے گی، یہ طے ہوا ہے اس اجلاس میں۔ اور سندھ کے تعلیمی اور صحت کے مختلف منصوبے جو جاپان حکومت کے زیر انتظام جاری ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ عزیز جمالی۔ سیوریج کی خستہ حال لائنیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ جمیلہ پمپنگ سٹیشن سیوریج کے پانی سے بھر گیا اور سٹی ایریا کے مکینوں کو چاروں اطراف سے گندے پانی نے گھیر لیا۔ گارڈن شو مارکیٹ میں سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، تو سیوریج کی خستہ حال لائنیں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ جمیلہ پمپنگ سٹیشن سیوریج کے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے احسن عباسی سے جو وہاں پر موجود ہیں۔ جی احسن، بتائیے گا۔ جی بالکل، جمیلہ پمپنگ اسٹیشن پہ میں اس وقت موجود ہوں اور صورتحال یہ ہے کہ علاقہ اولڈ سٹی ایریا کی بات تو بعد میں کی جائے، پہلے اگر جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی بات کی جائے تو رائزنگ مین کے دھسنے کے بعد جو ہے وہ پمپنگ بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ چاروں طرف سے گٹر کے سیوریج کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ پمپنگ میں آنے جانے کے لیے متعلقہ جو عملہ ہے وہ بھی گاڑیوں کا استعمال کر رہا ہے، فل بوٹ پہن کے جو ہے وہ پمپنگ کے راستے جو ہے وہ گزارے جا رہے ہیں کیونکہ پمپنگ کی تمام جگہوں پہ جو ہے وہ سیوریج کا پانی باہر آ چکا ہے۔ رائزنگ مین پیر والے دن میئر کراچی کو MD واٹر کارپوریشن کو وزٹ کرایا گیا جب اس کی مرمت کا کام کیا گیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ چند ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے مرمت ہونے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد وہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اولڈ سٹی ایریا کو مکمل طور پہ جو ہے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ رام سوامی گارڈن، شو مارکیٹ، یہ تمام علاقے جو ہے وہ گلی محلے سڑکیں جو ہے وہ زیر آب آ گئی۔ ان تمام سیوریج کا پانی جو ہے وہ پمپنگ نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ گلیوں میں نکلنا شروع ہوا۔ اس وقت جو ہے دو پمپنگ اسٹیشن میں دو پمپ جو ہے وہ چل رہے ہیں، جبکہ کچھ حد تک جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہوا ہے، لیکن جب تک وہ مرمت رائزنگ مین کی مکمل نہیں ہو جاتی، وہ بحال نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جو ہے صورتحال اسی طرح سنگین رہے گی۔ شہری جو ہے اولڈ سٹی ایریا کے وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ مبتلا رہیں گے۔ گلی محلوں میں جو ہے وہ پانی اب گھروں میں سیوریج کا داخل ہونا شروع ہو گیا، مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے اور بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ واٹر کارپوریشن کا عملہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وقت سے قبل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے، لیکن وقت جو ہے اس نے زیادہ صورتحال جو ہے وہ سنگین کر دی ہے اور اولڈ سٹی ایریا کے تمام مکین جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں۔ گلی محلوں سے لوگ جو ہے وہ پمپنگ پہ آ کے اطلاعات لیتے ہیں کہ کب جو ہے وہ مکمل طور پہ سڑکیں بحال ہو جائیں گی، سیوریج کا گندا پانی جو ہے اس سے نجات ملے گی، لیکن اس وقت تک تمام پمپ نہیں چلائے جا سکتے جب تک رائزنگ مین کی مرمت جو ہے وہ مکمل ہو نہیں جاتی۔ تیسری بار جو ہے وہ مرمت کی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ شام کو جو ہے وہ تیسرا پمپ چلایا جائے گا اور پانی کو کوشش کی جائے گی کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نالے کی شکل اختیار کرائی جائے۔ جی احسن، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اولڈ سٹی ایریا انتظامیہ کی غفلت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ رنچھوڑ لین چوک اور اطراف میں گندا پانی ٹریفک جام رہنے کا سبب بننے لگا، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रणछोड़ लाइन चौक पे। मेरे सीधे हाथ पे ये जो रास्ता है ये टिम्बर मार्केट की तरफ जाता है और मेरे उल्टे हाथ पे जो रास्ता है वो जाता है रणछोड़ लाइन बाजार की तरफ। लेकिन अलमिया ये है कि रणछोड़ लाइन चौक का ये हिस्सा इंतजामिया की गफलत की अक्कासी कर रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सीवरेज के निज़ाम जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। बाबा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी भाईजान, यहाँ पर जो है एक अरसा हो गया है, 20-22 दिन हो गए, कोई निगरानी नहीं हो रही इसकी, न कोई कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन भी ख़त्म हो गए, दफ्तर भी बन गए, वो एसी के अंदर बैठे रहते हैं, बाहर कोई आके देखता नहीं कि पब्लिक किस हाल में है। कपड़े ख़राब हो रहे हैं, कारोबार ख़राब हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। कोई पुरसान हाल नहीं है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, कारोबार शदीद मुतासर है, आम बाज़ार भी हैं, लेकिन इस सीवरेज के पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यहाँ के जो दुकानदार इलाका मकीन है उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत और बिलखुसूस ज़िला इंतज़ामिया उनको इस अज़ियतनाक सूरत हाल से निजात दिलाए। जी। ऑसिट एरिया के रामसवामी मिल्ला नगर के सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया। लोगों के घरों में गटर का पानी दाखिल इलाके की यूसी ऑफिस और सरकारी स्कूल में भी महफूज नहीं रह सके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद बताइएगा। देखिए जी, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है कि ओल्ड सिटी एरिया में कभी भी वेंचिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन जो है ये मसाइल पैदा होते रहते हैं। आज हमने देखा है कि ओल्ड सिटी एरिया की हर गली के अंदर इस वक्त पानी जमा है। रामस्वामी के मिल्लत नगर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब में आपको एक यूसी दफ्तर दिखाई दे रहा होगा। यूसी नंबर 4 है ये, और इसके बराबर में एक सरकारी टीएमसी का स्कूल भी है, जिसके अंदर अब पानी दाखिल होना शुरू हो चुका है। लोगों के घरों के इस्तंजा खाने से भी जो है वो पानी उबलता हुआ अब दिखाई दे रहा है। खवातीन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि पूरा दिन जब वो घर में होती है तो घर के अंदर गटर का पानी जो है वो दाखिल होना इनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो परेशानी का सबब बन रहा है। अगर बात करें रामस्वामी के अलावा रणछोड़ लाइन, गार्डन, उस्मानाबाद और इसके अतराफ के इलाकों की, तो वहां भी बड़ी बुरी सूरत हाल देखने के लिए मिल रही है। और अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि घर के सीवरेज की लाइनें जो है वो पानी के पीने की लाइनों के साथ मिल चुकी है, जिसके बाद जो है वो पीने के पानी भी जो है वो सीवरेज से मिला हुआ आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब जमीला पंपिंग स्टेशन में जो लाइन 36 इंच की फटी थी, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो मरम्मती काम है उसका सिलसिला जारी है। इस वक्त कश्ती चौक के मुकाम पर मरम्मती काम चल रहा है। इंतहाई ताखीर का शिकार है वो काम, और इंतहाई सुस्त रवि के साथ जो है यहाँ की वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। दावा ये किया गया था एक दिन के अंदर ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, दिन और रात 2 शिफ्टों में काम किया जाएगा, लेकिन इंतहाई सुस्ती है, मैन पावर की कमी है, मशीनरी की कमी है, जिसकी वजह से ये सारे मुश्किलात जो है इलाके के लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताएं, आप यहाँ पर रहते हैं, कैसे यहाँ पे मस्जिद तक कैसे जाते हैं? रोजे में तो लाजिम सी बात है नमाज पढ़ने हर आदमी जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शकील अहमद शेख मेरा नाम, और मैं रामस्वामी में गुज़िश्ता 40 साल से रिहाइश पजीर हूँ। ये जो माहौल आप देख रहे हैं, आपका कैमरा भी दिखा सकता है, ऐसा माहौल मैंने इस 40 साल में नहीं देखा। हर जगह पानी है, उस्मानाबाद से लेकर रामस्वामी, मिल्लत नगर और जोबली के अतराफ जो गलियां हैं, वहाँ पर रामस्वामी की जो गलियां हैं, जगह जगह गटरों की भरमार है और पानी बुरे तरीके से भरा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, लोगों के रोज़े हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस गंदे पानी की वजह से लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जिससे वो उनकी नमाजें रह जाती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी। कुछ खवातीन भी यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त एहतजाज भी कर रही थी, मुझसे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या मसले मसाइल है? ये तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, घर कैसे जाते हैं, आते जाते कैसे? भाई घर में तो हम कैद होके रह गए, बिल्कुल भी निकलना ही नहीं हो रहा हमारा घरों से। हमारे बच्चे तरावी की नहीं जा रहे थे, वो भी उन्होंने छोड़ दिए, इसके गंदे पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये यहाँ पहले मियां वसीम अख्तर थे, पर उनके पास वाटर बोर्ड नहीं था, लेकिन इस वक्त तो अभी मौजूदा मुर्तज़ा वहाब साहब है, उनके पास वाटर बोर्ड भी मौजूद है, वो चेयरमैन भी है यहाँ के, वो आके देख रहे हैं अभी क्या हाल हो रहा है। हम बहुत परेशान है, रोजे में कपड़े गंदे, बच्चे जा नहीं रहे, बाजार नहीं जा रहे, घर में कैद हुए हैं बिल्कुल। यूसी पीछे ही बनी हुई है, यूसी वाले कहाँ हैं? आप शिकायत करने गए थे उनके पास भी, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी सुनवाई नहीं की, और उन्होंने भी यूसी बंद कर दी थी। जब हमें दिखवाए रहे तो वो भी बंद है, जाहिर है वहाँ रास्ता नहीं आने जाने का, तो फिर वो भी बंद ही करेंगे। स्कूल बंद है, क्लिनिक बंद है, स्कूल बंद है, सब कुछ यहाँ पे बंद है। और जो मैं तो यूँ बोलती हूँ कि जिनकी नमाजें छूट रही है ना, इसका अजाब भी जो है ना इन्हीं लोगों के ऊपर जाएगा, जिनके इख्तियार में सारी चीजें हैं, और इन्होंने क्या अचार डालना है उन चीजों का, जिन चीजों का यहाँ पे काम होना है।
तो छोड़ देनी बिल्कुल चाहिए। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। लोग जो है वो हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान, बच्चों को लाजिम सी बात है सुबह उठते होंगे, तैयार होते होंगे, तो वॉशरूम में भी बताया जा रहा है कि इस वक्त सीवरेज का पानी निकलना शुरू हो गया है। भाई बिल्कुल बहुत तकलीफ है, पूरे इलाके में हमारे वॉशरूम और घर पानी के भरे पड़ा हुए हैं। अब यह है कि हम अपने घर से दूसरे घरों पे जाते हैं और वहाँ इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से वापसी अपने घर पर आते हैं। बहुत तकलीफ में है, अल्लाह जानता है कि इस इलाके का हाल जो है आपके सामने है। अच्छा, ये बताएं कि घर के जो घरेलू काम होते हैं वो भी इस मसाइल से मुतासिर हैं? कुछ भी नहीं हो रहा भाई, घर में सिर्फ महसूर होके रह गए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अनाज तो था ना घर में, वो भी अब हमारा खत्म हो चुका है। घर में हम जाएंगे कैसे? यहाँ पे गटर का पानी इतना इस कदर भरा हुआ है कि अब गिर भी सकते हैं और बच्चे मच्छर इस कदर के हो चुके हैं। और अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ गए ना तो उसकी जिम्मेदार भी ना सिर्फ हुकूमत होगी और कोई नहीं होगा। बिल्कुल मच्छरों यहाँ की और अफजाइश सिटी में एरिया भी के राम मुस्तकिल- सवामी मिल्लर नगर का सीवरेज सिस्टम इस वक्त तबाह हो गया है। जुनेद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीवरेज के नाकारा निजाम ने लियारी में तबाही मचा दी। सीवरेज की नई लाइनें भी पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी। नबील गबोल पार्क की तरफ पानी जमा है और इलाका मकीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने लियारी को पेरिस बना दिया है। आगाह कर रहे हैं फरहान खान। फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमेला पंपिंग स्टेशन सीवरेज लाइन के बाईस शहर कायद के बेशतर मकामात पर सीवरेज का पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं लियारी गबोल पार्क के अंदर मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन हैदर आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पे इस कदर कुछ संगीन सूरत हाल है कि पार्क के अतराफ जो है वो पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हत्ता के लोग भी जो है वो घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। इस कदर पानी भरा हुआ है कि लोग यहाँ से ना घरों से बाहर निकल सकते हैं ना ही अंदर जा सकते हैं। इस वक्त कुछ इलाका मकीन भी हमारा मौजूद है, इनसे भी तफसीलात लेते हैं। मुझे बताइएगा किस कदर जो है वो संगीन सूरत हाल है और कितनी मुश्किलात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, लियारी के हालात देखें कि कितना पानी आ रहा है। हम इसको पेरिस समझते थे, आज हमारे पेरिस के हालात देखो। आज हमारे पेरिस के हालात देखो, पेरिस के हालात देखो। ये हालत है, लोग घरों में कैद होके रह गए। अभी ईद आने वाला है, लोग मस्जिद ग्राउंड में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। क्या मच्छरों का भरमार, बीमारियां, इस हालात में हम लोग यहाँ गिरे हुए हैं। कोई पुरसान हाल है ही नहीं हमारे यहाँ पे। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, हम चाहते थे कि अच्छा काम होगा हमारे लिए, अच्छा ही देखे। ये हालत देखे, ये लियारी जो है गंदा से गंदा होते जा रहा है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा किस कदर जो वो मुश्किल सूरत हाल है उन मकीनों के बारे में क्या कहेंगे जिनके घरों के आगे इस कदर पानी है कि वो ना घर से बाहर निकल सकते हैं ना ही अंदर जा सकते हैं। सर आप खुद देख रहे हैं, आप ना देख रहे हैं, यहाँ पर कोई सब अपने घर में महदूद है। रेत शहरी में महदूद है, अफ्तारी में महदूद है। कोई नहीं जल सकता, ना कोई अंदर जा सकता है। आए मजबूरी है। हम लोग लियारी वाले ऐसी बेबस है। लियारी वाले का कोई हाल वाल तो नहीं है, बस पीपल पार्टी का वोट दे के हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ के मकामी लोग हम लोग कहा कि वोट दे दो, हेड दो दे, वोट दे दिया हम लोग ने। हम लोग का ये हाल है, घरों के सामने पानी है। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर मिनिस्टर भी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसा हाल नहीं किसी का। यहाँ पर कोई ये लियारी वाले का बुनियादी हक यही था, ये लोग का लियारी वाले का होना ऐसे चाहिए। जो पीपल पार्टी को वोट देता है, सपोर्ट करता है, यही हाल है हम लोग का। जी बिल्कुल, इस वक्त इस कदर का संगीन सूरत हाल है कि जो मकीन है वो घरों के अंदर महदूद होने पर रह गए हैं। क्या सहरी हो, क्या अफ्तारी हो, ना नमाज के लिए बाहर निकल सकते हैं, ना ही अपने घरेलू अमूर के लिए जो है वो घर से बाहर निकल सकते हैं। जबकि इस कदर संगीन सूरत हाल है कि इलाके के गटर जो है वो जगह जगह उभर रहे हैं, जिसके बाइस लियारी के मकीन जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुतादिद शिकायतों के बावजूद भी जो है वो हफ्तों गुजरने के बावजूद भी जो है यहाँ से पानी की नकासियाब का अमल जो है वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। जी फरहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से रुक करेंगे एहसन अब्बासी का, जो कि इस वक्त ओल्ड सिटी एरिया में मौजूद है। एहसन, बताइएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि चारों तरफ गंदा पानी मौजूद है, सीवरेज की जो खस्ता हाल लाइनें हैं, कब से ऐसी हैं और इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, पीर वाले रोज़ जो है वो मेयर कराची को विज़िट कराया गया, साथ साथ एमडी वाटर कॉरपोरेशन भी थे। राइजिंग मेन की मुरम्मत की गई थी, उस हवाले से वो जो लाइन बैठी थी उसका तफसीली दौरा कराया गया। वजह बताई गई किस वजह से 36 इंच की सीवरेज की जो लाइन है जो कि लियारी नदी में जोड़ी गई है, जहाँ पे ये तमाम सीवरेज का निज़ाम जो है वो छोड़ा जाता है, उसकी तमाम तफसीलात बताई और उसके बाद पंपिंग का जो है वो आगाज़ किया गया। दोबारा से पंपिंग चलाई गई, लेकिन वो राइजिंग मेन जो है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिसके बाद जो है वो देखा गया कि दोबारा से जो है वो लाइन जो है वो फटी और उसके बाद सीवरेज का पानी निकलना शुरू हुआ और ये सूरत हाल जो है वो
शिद्दत इख्तियार कर गई और अमले के बस से बाहर हुई और देखते ही देखते तमाम मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सूरत हाल ऐसी थी कि सीवरेज का तमाम पानी जो है वो गली मोहल्लों में जो है वो मौजूद था। अगर मैं सूरत हाल आपको दिखाऊं तो ये सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो पंपिंग स्टेशन भी सीवरेज के पानी में घिरा हुआ है। कोई गुजरगाह ऐसी नहीं है जहाँ पे सीवरेज का पानी जो है वो निकल के मौजूद ना हो। पंपिंग चलाई जा रही है, 2 मोटरें जो है वो इस वक्त चलाई गई हैं ताकि तेज़ी के साथ जो है वो पंपिंग की जा सके। सीवरेज का पानी जो है वो गली मोहल्लों में जो निकलना शुरू हुआ है उसको दूर किया जा सके। लेकिन आज जब तीसरी बार मेन वाइजिंग की मुरम्मत की गई है तो रात को बताया जा रहा है कि उसको भी पंपिंग को शुरू किया जाएगा ताकि फौरी तौर पे जो है तमाम शहरियों को मुश्किलात का जो सामना है उसको दूर किया जा सके। जी शहरियों की मुश्किलात का दूर किया जा सके। हमारे नुमाइंदान हमें शहर के दीगर इलाकों से सीवरेज के नाक़िस निज़ाम के हवाले से अपडेट करे थे। हसन अब्बासी, जुनेद जावेद, फारहान खान और बसीम इफ्तिखार, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, सिंध असम्बली में 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए असम्बली सेक्रेटरीट ने हिदायतनामा जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजीज़ जमानी से। आजीज़ बताइएगा। देखिए 2 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहा है सिंध असम्बली में, पहले ये इम्कान था कि शायद कुछ मेंबरान से अलग दिया जाए, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हिदायतनामा सेनेट इलेक्शन के हवाले से तमाम अरकान के लिए असम्बली सेक्रेटरीट ने सिंध असम्बली सेक्रेटरी अहकाम ने वो कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो शनाख्ती कार्ड वो अपने साथ तमाम मेंबरान लाजमी लाएं। वोट के वक्त ये कार्ड शो करना होगा और उसके अलावा ये भी कहा गया है तमाम मेंबरान को कि वो वक्त में सुबह 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, उसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये तैयारियां कर ली गई। जराए कह रहे हैं कि पीर के रोज सिंध असम्बली का जो ऐवान है उसको इलेक्शन कमीशन के सुपर्द किया जाएगा, पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा और 2 अप्रैल मंगल को सिंध असम्बली के हाल में सेनेट का इलेक्शन होगा। जी आज हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आला सिंध को अपनी स्टॉक एक्सचेंज और ताजरों से मुलाकात की तफसील बताई। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आला सिंध को अपनी स्टॉक एक्सचेंज और ताजरों से मुलाकात की तफसीलात भी बताई हैं। अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, अजीज़ इस हवाले से भी बताइएगा। मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें खास तौर से FDR के हवाले से जो बातें हुई हैं, FDR की तंजीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर भी बात हुई है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सराहा है वफाकी वज़ीर ने कि सूबा सिंध की जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सनतकार गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं, जो अपनी शिकायत से आगाह करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि वो इस हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम से बात करेंगे। तो और दूसरा इसमें जो कटौतियाँ हो रही हैं सिंध हुकूमत की वफाक की जानिब से बराह रास्त जो कटौतियाँ हो रही हैं उस पर बहुत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अफसोसनाक सूरत हाल है कि 2015 में 1 अरब के बजाय 6 अरब रुपए काटे गए थे और अब हाल ही में वफाकी हुकूमत ने हेस्को और सेपको के मद में 13 अरब रुपए से हुकूमत के काट किए बगैर बताए, बगैर आगाह किए। इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि ये जो एक्सोर्स कटौती होती है, बराह रास्त कटौती होती है, उसको रोकने के लिए वो इस मसले को हल करवाएंगे। APR और सिंध हुकूमत के दरमियान जो मसाइल चल रहे हैं उनको भी जल्द बैठकर हल किया जाएगा ताकि इन दो इदारों के दरमियान आइंदा मामलात ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली। सिंध हुकूमत ने महकमा जेल इस्लाहात कमेटी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। कमेटी को ख़त्म करके 2 अलग से इस्लाहात और विजिलेंस कमेटियां बनाई जाएंगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। आज़ाद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने महकमा बराए जेल खानाजात की इस्लाहात कमेटी को गैरफाल करार दे दिया है। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद सदीक मेमन की सरबराही में बनाई गई इस्लाहात कमेटी को ख़त्म करके 2 अलग अलग से नई कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया है। ये 2 नई कमेटियां, इसमें एक इस्लाहात कमेटी होगी और दूसरी जो विजिलेंस कमेटी होगी, ये बनाने का फैसला किया है। इस वजह से महकमा जेल खानाजात में इस्लाहात विजिलेंस 2 अलग कमेटी बनाने के इस वक्त
हुकूमती सतह पर मुशावरत का अमल जारी है। दोनों कमेटियों में कानूनी माहिर इन कमेटियों का सरबराह बनाया जाएगा। इस हवाले से सिंध काबीना से हतमी जो है मंजूरी जाएगी। इस हवाले से इस वक्त महकमा जेल खाना जात ने बाकायदा तौर पर इन कमेटियों के क्याम के अमल का ऐलान के हवाले से मुशावरत का अमल तेज कर दिया है और तमाम तर जो कानूनी आईनी माहिर ने महकमा कानून, महकमा इंसानी हुकूक और महकमा जेल खाना जात तीनों महकमों से मुशावरत की जा रही। जैसे मुशावरत का अमल मुकम्मल होगा तो ये मामला सिंध काबीना का सामना रखा जाएगा और सिंध काबीना से जैसे मंजूरी मिलेगी तो इन कमेटियों का क्याम अमल में लाया जाएगा, जिसके बाद महकमा जेल खाना जात के यहाँ से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। नाज़रीन, कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए बनने वाला मेगा प्रोजेक्ट रेड लाइन अब 2026 में मुकम्मल होगा। शहरियों को नई नवीद सुना दी गई है। मंसूबे पर काम कई माह बंद रहने के बाद ईद उल फितर के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा। शहरियों का ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर देखने के लिए उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। इसी पर आज इस्तेमाली की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मेगा प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन कराची में ट्रांसपोर्ट की फराहमी का एक ऐसा मंसूबा जिससे यौमिया 3 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे, लेकिन मंसूबे की तकमील में गैर ज़रूरी ताख़ीर अहले कराची के लिए अज़ियत बन गई है, जिसे मुस्तकबिल की सहूलत को जहन में रखते हुए वो हर दिन बर्दाश्त कर रहे हैं। रेड लाइन मंसूबा अगस्त 2022 में शुरू किया गया था, जिसे सितंबर 2025 यानी अगले साल मुकम्मल हो जाना था, लेकिन अब तक 50% भी नहीं बन सका। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन जिनाह एवेन्यू से सफूरा चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर तामीर की जा रही है। मंसूबे पर काम का आगाज हुआ तो कई मसाइल ने सर उठाया। कराची में जिस तरह का यूटिलिटीज़ का सहूलियात का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ थीं, जिस वजह से डिज़ाइन में काफ़ी तब्दीलियाँ आई। और एक दूसरा रीज़न इसका यूटिलिटीज़ रीलोकेशन का पेस था, जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त ये इसकी जो डॉलर प्राइस इसमें लॉक हुई थी वो 156 रुपीज़ में हुई थी। आज आप डॉलर प्राइस देख लें और बीच में रेसेशन में तो ये करीब 300 के करीब हुआ। हुकाम के मुताबिक साल 2023 में मंसूबा उस वक्त ताख़ीर का शिकार हुआ जब यूटिलिटीज़ यानी गैस, बिजली, पानी और सेवरेज लाइन समेत ऑप्टिक फाइबर की मुंतकली में तवक्को से ज़्यादा वक्त लगा। मजबूरन मंसूबे की तकमील की मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर दिया गया, लेकिन तामीराती काम की स्पीड न बढ़ सकी। निगरान दौर में काम बिल्कुल ही ठप हो गया और ठेकेदार ने डॉलर की कीमत में इजाफे को बुनियाद बनाते हुए मंसूबे पर काम करने से ही इनकार कर दिया। मेजर जो रीज़न है मतलब उसका कॉज है वो एक तो जो हाइपर इन्फ्लेशन आई कंट्री में, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशन आई जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, मटीरियल कॉस्ट। उसकी वजह से जो है थोड़ा एक इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा स्लो डाउन हो गया। फिर उस पर कॉन्ट्रैक्टर ने काम का स्लो कर दिया। फिर फर्दर हमने उसके साथ बात की, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ टाइम से ये जो है हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से हमारा प्रोजेक्ट बंद हो गया था। रेड लाइन का मंसूबा जिस पर इस वक्त काम बंद है शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। एक तरफ हादसात तो दूसरी तरफ रेड लाइन के कॉरिडोर ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी रोड के दरमियान मंसूबे के लिए खुदाई शहरियों के लिए दोहरा अजाब बन गई है। यूनिवर्सिटी रोड पर सिर्फ 5 जामियाती नहीं हैं बल्कि कई कारोबारी मरकज़ हैं। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत ये कराची की शहरी आबादी का दिल कहलाता है। शहर की अहम तरीन शाहरा जिस पर शहर के सबसे ज़्यादा तालीमी इदारे हैं, घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। रोज़ के रोज़ हादसा हो रहे हैं, जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए तो अच्छी बात है, ताकि जो दुश्वारी होती है लोगों को यहाँ से तकरीबन 3-4 बजे 5 बजे तक खाली बंदा पैदल गुजर नहीं सकता। इधर सर बहुत मसाइल देखते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाने के पुल भी नहीं है, ऊपर जो लोग आते हैं बीच से क्रॉस करते हैं, रोड पार से यानी पुल पे नहीं चढ़ते हैं। ये अभी सरकार को चाहे कि अभी जल्दी इसको मुकम्मल करना चाहे, क्योंकि अभी ये जितना भी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा ये आवाम के लिए सहूलत बन जाएगा। और तो कोशिश करेंगे, 2 साल तो बहुत ज़्यादा है,
2 साल में हो जाएगा तो फिर तो बंदे का तो हालात तो पूरे हो जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। नई हुकूमत के क़याम के बाद सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की सदारत में होने वाले पहले ही इजलास में रेड लाइन मंसूबे की बंदिश का मामला उठाया गया। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ट्रांस कराची के अफसरान ने रुकावटें, मुश्किलात और ठेकेदार के मुतालबात सामने रखे। वफाकी हुकूमत से राब्ते हुए, कंसल्टेंट से मशवरा किया गया और तमाम स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठ गए और अब एक मरतबा फिर मंसूबा की तकमील की मुद्दत बढ़ाकर मार्च 2026 कर दी गई है। इस वक्त जो टाइम हम एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका 2 साल का टाइम इसको हमें चाहिए कंप्लीशन के लिए, तो होपफुली हम दिसंबर 25 या मार्च 26 तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। वो अभी हम इसकी फर्दर देख रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं कि हमें कितना एग्जैक्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा कंप्लीशन के लिए। 305 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाले रेड लाइन पर बायोगैस से चलने वाली बसें चलेंगी, लेकिन बायोगैस प्लांट के हवाले से भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा जो बसेस इसमें इस्तेमाल होंगी, उनका फ्यूल जो है वो भैंस कॉलोनी में ज़मीन मुख्तस की जा चुकी है हुकूमत सिंध की तरफ से, और बायोगैस से गुड हो गए। तो ये बिल्कुल एक क्लीन एनर्जी के उस ज़मन में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है यहाँ पे। कराची के शहरी ये ख्वाब देख सकते हैं कि 2026 के आखिर तक रेड लाइन पर बायोगैस से चलने वाली जदीद बसें दौड़ती हुई नज़र आएंगी, लेकिन अवाम के इस ख्वाब को ताबीर देने के लिए हुकूमत को बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। BRT रेड लाइन कब मुकम्मल होगा और इस ख्वाब की तकमील कब मुकम्मल होगी, लेकिन शहरी अब ये उम्मीद रखते हैं कि उनको मज़ीद भुगतना नहीं पड़ेगा। कैमरामैन सजाद रईस और शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। 12 साल बच्चे के अगवा और कत्ल का जुर्म साबित इंसादे दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुल्ज़िमान खालिद और परवेज़ अली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। तो 12 साल बच्चे के अगवा और कत्ल का जुर्म साबित हो चुका। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुल्ज़िमान खालिद और परवेज़ अली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जो बिल्कुल देखें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 12 साल बच्चे के अगवा और कत्ल का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने 2 मुल्जिमान खालिद और परवेज अली को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए दोनों मुल्जिमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया है। जबकि अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दिया है। जबकि अदालत ने 2 शरीक मुल्जिमान अल्लाह बख्श और असगर को अदम सबूत पर जो है वो केस से बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान खालिद और परवेज बिन कासिल जाम थाने की हदूद में उन्होंने 12 साल रफी को अगवा किया और बाद में तावान न देने पर जो है वो कत्ल कर दिया था। मुल्जिमान के खिलाफ 12 साल रफी को 2 जुलाई 2016 में जो है उन्होंने इसे अगवा किया था। जी बहुत शुक्रिया जवाद आसिफ। एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में अरासी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 4 मई तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में अरासी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का ये रेफरेंस है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत कराची में क्लिफ्टन में क्लिफ्टन की अराजी में गैर कानूनी अलॉटमेंट के मुतालिक रेफरेंस की समाअत हुई है। इसमें रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 4 मई तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिर यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। इसी रेफरेंस में मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर जो मुल्ज़िमान हैं वो फरीक हैं और साथ ही साथ तमाम मुल्ज़िमान ने एहतसाब अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। जी मुमताज़, हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी खुर्रम कासमी समेत दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने JIT और इदारों को तहकीकात तेज करने का हुक्म दे दिया है। क्या तफसीलात है जान लेते हैं मुमताज़ जमाली से। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता खुर्रम काज़मी समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लापता शहरी खुर्रम काज़मी के वालिदैन जो हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत के रूबरू आहो बका की है कि 2021 से उनका ये बेटा जो है वो लापता है और टीपू सुल्तान थाने की हदूद से जो है वो
ان کے بیٹا جو ہے وہ لاپتہ ہوئے ہیں، لیکن تاحال پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے لاپتہ شہری کی عدم بازیابی پر تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ لاپتہ شہری سے متعلق کیا جو ہے وہ پیش رفت ہے، جس پر تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ خرم کاظمی کا تعلق کالا دم تنظیم سے تھا، لہذا تلاش کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ عدالت نے JIT اور دیگر اداروں کو تحقیقات کرنے کا حکم دے دی ہے۔ عدالت نے صوبائی ٹاسک فورس کی رپورٹ بھی جو ہے وہ طلب کر لی ہے، جبکہ عدالت نے صوبائی وفاقی حکومت سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے 4 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔